Okay, so yesterday we have started the new topic. You all are aware, and in general, the concept I have explained you yesterday. The topic we are going to deal is the remedies for the breach of a contract. Which topic we are going to deal? We are going to deal with the topic of remedies for the breach of a contract. Topics हम लोग क्या करें deal करें हाँ. कल आपको बताया था number one very common remedy for the breach of contract is the suit for damages. Okay. Because of your breach of contract, I have suffered any loss. Okay, so to recover that loss, I will file the suit for a damages. Okay. Number two remedy in common language, I have explained you that in general, when there is no pre-consent for the creation of a contract and the contract is caused by coercion, under influence, fraud or misrepresentation, we can apply for the cancellation of contract, that is rescission of contract. Okay, I don't want any another thing, alternative remedy नहीं चाहिए, damages नहीं चाहिए. जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है वही करके चाहिए. Then for what I will file the suit? I will file the suit for a specific performance of a contract. Okay. Suppose dependent has now promised me that he will not do something. Okay, that is actress has promised the film producer that she will not sign another film till she's working in the film of the producer. But now she's signing the film of some another producer. She will file the suit for injunction. Okay, and then when the contract has been broken, till the time whatever I have earned, if I file the suit for that, as much as earned, then that suit is called as a suit for quantum merit. Okay, so in all we have the 5 remedies for the breach of a contract. Okay, number 1 suit for damages, number 2 rescission of contract, number 3 suit for specific performance of contract, number 4 suit for injunction, number 5 suit for a quantum merit is the options we have. Okay, then what we have done is that we have started yesterday the suit for damages. कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया था हमने? सूट फॉर डैमेजेस वाला पॉइंट हमने कल शुरू कर दिया था. हाँ, आपको बताया था मैंने, क्या बताया था याद है? नंबर 1 हम लोग कौन से डैमेजेस कॉमनली रिकवर कर सकते हैं? बोलो, जो नॉर्मल डैमेजेस है, नेचुरल जो डैमेजेस है, हाँ, वो नेचुरल डैमेजेस हम लोग आसानी से रिकवर कर सकते हैं. हाँ, बट अगर हम लोग स्पेशल डैमेजेस की बात करें तो हमने अगर सामने वाले पार्टी को मैक्नोन कराया कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हमें ऐसे ऐसे स्पेशल डैमेजेस होने वाले, तो ही वो स्पेशल डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं, नहीं तो स्पेशल डैमेजेस रिकवर नहीं किए जा सकते. हाँ, and the last point where we have ended today was remote damages. Okay, remote या indirect damages जो है वो recoverable नहीं है. remote या indirect damages recoverable नहीं है. हाँ, क्योंकि ना फिर वो अनएंडिंग डैमेज स्टोरी हो जाएगी. आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, इसलिए मुझे हार्ट अटैक आया, मुझे हार्ट अटैक आया, देखिए मेरे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आया, फिर इसका भी पैसा आप दो, उसका भी पैसा दो. हाँ, नो, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप पार्टी को लायबल पकड़ सकते हो, बट इसकी वजह से ये हुआ और उसकी वजह से वो हुआ, ऐसे सारी चीजों के लिए आप पार्टी को क्या नहीं कर सकते, वहां पे लायबल नहीं पकड़ सकते. सो natural damages are recoverable. Then special damages are recoverable only if they are made to the parties. And number 3 remote or indirect damages are not recoverable. यहाँ तक हमने कल क्या किया था, वहाँ पे डिस्कस किया था. Okay, now next point पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे. हाँ, next point क्या है? देखो, compensation for the failure to discharge the obligation resembling those created by the contract. हाँ, मतलब आप सबको quasi contract याद है? हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हम लोग डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं, ये रूल तो हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है. हाँ, तो क्या अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं क्या? द आंसर इज यस. The same rule which is there for the breach of a normal contract, the rule also applies to the breach of the quasi contract also. Even किसको applicable होगा बोलो, वो quasi contract के breach को भी वो applicable वहाँ पे हो जाएगा. हाँ, remember our example of the श्रीखंड, परसों निहारिका ने, चिराग ने मिला के वो एग्जाम्पल आप सब लोगों को वापस एक बार रिमाइंड करा दिया था. हाँ, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर आपने वो श्रीखंड खाया है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा. या तो श्रीखंड का डब्बा वापस दो या उसका पेमेंट करो, आइदर ऑफ एक चीज तो आपको वहां पे करनी पड़ेगी. हाँ, सो देयरफॉर यू हैव टू पे फॉर दैट मनी. हाँ, व्हेन एन ऑब्लिगेशन resembling to those are created by the contract has incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge is entitled to receive the same compensation from the party in default as if the person has contracted to discharge it and had broken his contract. आप resembling to that of contract करते हो तो same obligation रहेगा जो normal contract में वहाँ पे रहता है. Then next one देखो, explanation to section 73 क्या कह रहा है देखो अभी. हाँ, it is estimating the loss arising from the breach of contract.
The means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of a contract must be taken into account. हाँ, जब आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस काउंट करते हो ना, तो सामने वाले पार्टी को आपके ब्रीच की वजह से हाँ क्या इनकन्वीनियंस हुआ है, वो इनकन्वीनियंस भी थोड़ा क्या किया जाता है, काउंट वहां पे किया जाता है। देखो आगे क्या गया, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 73। ये ना आपके पूरे मॉड्यूल में एनालिसिस रिपीट दिया होता है, वापस सेक्शन ऊपर देते हैं उसको वापस एनालिसिस फॉर्म में डाल देते हैं वहां पे। हाँ, सो दैट विल बी अराउंड सेम थिंग विच ऊपर हमने क्या किया वहां पर डिस्कस किया। हाँ, क्या किया देखो ध्यान रखो एनालिसिस में। हाँ, नंबर 1 सेक्शन 73। हाँ, सेक्शन 73 क्या करता है देखो, लेस डाउन द रूल्स। क्या ले डाउन करता है, रूल्स। किस चीज के रूल्स, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। हाँ, किस चीज के रूल ले डाउन करता है सेक्शन 73, नोट डाउन करो, rules as to the amount of the compensation. हाँ, कब, on the breach of contract, हाँ, the party who suffer from breach, जिस पार्टी को उस breach से नुकसान हुआ है, हाँ, is entitled to receive from the party who has broken the contract. जिस पार्टी ने contract broke किया है, उससे वो क्या receive करने के लिए entitled है बोलो, compensation, नुकसान भरपाई। किस चीज के लिए नुकसान भरपाई मिलेगी उसको, for the loss or damage caused to him by breach. उसको इस ब्रीच की वजह से जो भी लॉस या डैमेज हुआ है, हाँ, वो रिकवर करने के लिए वो क्या होगी वहां पे एंटाइटल्ड होगी। ओके, ध्यान रखिए, सो सिंपल। हाँ, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक किया है, वो पार्टी, जिस पार्टी का नुकसान हुआ है, उस पार्टी को जो भी नुकसान हुआ है दैट इज कंपनसेशन पे करने के लिए क्या होगी, लायबल हो जाएगी। दैट्स इट। हाँ, देन आपको बताया हुआ रिपीट पॉइंट है, कौन से डैमेजेस आप रिकवर कर सकते हो। देखो ध्यान रखो, लॉस और डैमेज विच नेचुरली अराउज, 100% रिकवरेबल डैमेजेस। आप बताओ मत बताओ कौन से डैमेजेस 100% रिकवरेबल है, बोलो नेचुरल डैमेजेस आर 100% रिकवरेबल वहां पे। हाँ, और कॉम्पेंसेशन कैन बी क्लेम फॉर लॉस और डैमेज, हाँ, व्हिच अ पार्टी न्यू, हाँ, व्हेन दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर हम लोग कौन से डैमेजेस की बात करें, स्पेशल डैमेजेस की बात करें, हाँ, तो स्पेशल डैमेजेस कब रिकवर है बोलो, पार्टी न्यू व्हेन दे एंटर्ड इनटू। कल वाला टेलर का एग्जांपल याद है आप सबको। हाँ, कि उस टेलर ने अगर रेलवे कंपनी को बताया होता कि ये मशीन टाइम पे नहीं पहुंचा तो मेरा 15,000 का नुकसान होगा, मतलब रेलवे कंपनी वाज अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्ट, न्यू नोन अबाउट दैट फैक्ट, तो फिर वो टेलर रेलवे कंपनी से क्या कर सकता था, स्पेशल डैमेजेस रिकवर कर सकता था। बट उसने मैक्नोन कराया नहीं ना, तो टेलर रेलवे कंपनी से स्पेशल डैमेजेस क्या नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता। ओके, सो गेटिंग द पॉइंट। आगे देखो, सो स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम्ड ओनली ऑन द प्रीवियस नोटिस। अगर आपने प्रीवियस नोटिस दिया है तो ये आप स्पेशल डैमेजेस रिकवर कर सकते हो, नहीं तो आप स्पेशल डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकते हो। गॉट द पॉइंट। हाँ, बट द पार्टी सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच इज बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। बट ना इसको ना हम लोग हमारे लॉ के भाषा में ना, ये जो था सेंटेंस था ना, बट से लेकर लॉस तक वाला सेंटेंस, इसको हमारे लॉ के भाषा में ना हम लोग मिटिगेशन ऑफ लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं पता है, मिटिगेशन ऑफ द लॉस ना, या मिटिगेशन ऑफ द डैमेज। देखो मुझे पता है कि अब चिराग ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो ऐसे भी मैं कोर्ट में जाके चिराग से पैसे तो रिकवर कर सकती हूँ ना, तो चलो और नुकसान हो जाए, हाँ, क्योंकि मुझे नुकसान भरपाई तो मिलने वाली है। ये जो मेंटालिटी, ये मेंटालिटी रॉन्ग है। आपको नुकसान हो रहा है, सही है, हाँ, बट अगर आपके हाथ में है तो वो नुकसान कम से कम कैसे होगा, इसके लिए कोशिश करना भी आपकी ड्यूटी बनती है। ओके, हाँ, टेक अ रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या लेना है आपको बोलो, हाँ, रीजनेबल स्टेप्स आपको वहां पे लेने हैं। हाँ, एंड देन नेचुरल डैमेजेस हम लोग रिकवर कर सकते हैं। हाँ, देन स्पेशल डैमेजेस अगर हमने पार्टी को मैक्नोन कराया है तो रिकवर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नो कंपनसेशन इज पेएबल फॉर एनी इनडायरेक्ट और रिमोट लॉस। कौन सा कंपनसेशन रिकवर ही नहीं कर सकते, रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस के लिए जो भी नुकसान होगा वो हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, सो गेटिंग द पॉइंट। रेमेडी बाय डैमेजेस मोस्ट कॉमन रेमेडी है, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, ये सारी चीजें तो बाद में आती है। इन जनरल पार्टी क्या प्रेफर करती है बोलो, इन जनरल पार्टी प्रेफर करती है कि पहले हम लोग क्या मांगे वहां पे, डैमेजेस मांगे। ये बहुत कॉमन रेमेडी होती है वहां पे। हाँ, दिस एंटाइटल्ड द पार्टी टू रिकवर द कंपनसेशन। इस रेमेडी की वजह से आप क्या रिकवर कर सकते हो, कंपनसेशन। किस चीज के लिए, लॉस सफर्ड बाय, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसके लिए आप कंपनसेशन रिकवर कर सकते हो। हाँ,
उसके सेक्शंस कौन से आते हैं, 73 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट सारे कॉमन सेक्शंस कंबाइन करें तो कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस आ जाते हैं डैमेजेस के लिए, सेक्शन 73 से 75 तक सेक्शन डैमेजेस के लिए क्या हो जाते हैं, वहां पे कवर हो जाते हैं. ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैमेजेस. In detail that kinds of damages now we are going to discuss thereon. हाँ, चलो क्या देखना है ध्यान में, kinds of damages is the point we are going to discuss. अभी ना ये जो है ये 3 damages तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया. हाँ, ये जनरल damages, ordinary damages, they are also called as a natural damages. इसको और एक नाम क्या बोलो, natural damages, ये भी इसको और एक नाम है. तो yes, natural damages as of right, हाँ, as a right आप recover कर सकते हो वहाँ पे. Okay, so just now I have told you that which damages can be recovered. We can recover the natural damages. Number 2 देखो क्या है, special damages कब recover कर सकते बोलो, हाँ, अगर आपने सामने वाले पार्टी को मैक्नोन कराया है, हाँ, उसका नॉलेज दिया है तो पहले से कि बाबा आपने ब्रीच किया तो हमें ऐसा ऐसा स्पेशल नुकसान होने वाला है, अगर आपने मैक्नोन कराया तो आपको स्पेशल डैमेजेस रिकवर कर सकते हो. अभी ये अगले जो डैमेजेस है ना, ये आपको न्यू कंसेप्ट है. हाँ, वरना हम लोग उसमें क्या करते हैं, वहां पे डील करना शुरू कर देते हैं. हाँ, पहले जो नोन है वो 2 कंसेप्ट क्या करते हैं, पहले खत्म कर देते हैं. हाँ, पहला डैमेजेस क्या बोलो, ऑर्डिनरी डैमेजेस. उसको ना और 2 नाम भी आपको अभी भी बताया. दे आर आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट डैमेजेस, मेंशन करके रखो, समझो. हाँ, they are also called as a direct damages and they are also called as a natural damages. उसको और एक नाम क्या है, natural damages भी है. So these are called as ordinary damages, direct damages, natural damages. And whether they are recoverable, yes, they are recoverable as a right. 100 रुपए का चावल हो गया 70 रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी. हाँ, ब्रिज किया उस दिन 70 रुपए से 100 रुपीज केजी प्राइस की प्राइस हो गई. Yes, I can as of my right recover 30 rupees per kg. In that particular case में सीधे सीधे रिकवर कर सकते हैं. So which damages are as of right recoverable, ordinary damages are recoverable as of a right. Okay, let's see. हाँ, देखो क्या गया, when the contract has been broken, contract क्या हो गया बोलो, broke हो गया. The party who suffers by the breach is entitled to receive from the party who broken. हाँ, जिसने ब्रोक किया उसको क्या देना है बोलो, कंपेंसेशन, नुकसान भरपाई. किस चीज के लिए, नुकसान के लिए. हाँ, फॉर एनी लॉस और डैमेज विच नेचुरली अराउज इन द कोर्स ऑफ द थिंग्स. हाँ, लेकिन वो डैमेज कैसा होना चाहिए बोलो, नेचुरल होता है, तो वो रिकवर करने के लिए वो क्या वहाँ पे एंटाइटल्ड है. हाँ, सच कंपेंसेशन, हाँ, कैसा नहीं होना चाहिए, हाँ, रिमोट नहीं होना चाहिए और इनडायरेक्ट लॉस नहीं होना चाहिए. हाँ, तो वो मेंशन करके रखो कि विच डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल एट ऑल, रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल एट ऑल. तो कौन सा डैमेज नहीं चाहिए हमें, रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेज नहीं चाहिए वहां पे. और कौन सा डैमेज रिकवरेबल हो, नेचुरल डैमेजेस जो है वो नेचुरल डैमेजेस वहां पे रिकवरेबल है. देन में हाँ, ना उसका फेमस केस एकदम, हाँ, नोट डाउन करके रखना आपको दिमाग के अंदर आपके, Hadley versus Baxendale, हाँ, which is the famous case for the rule of damages. It's a Hadley versus Baxendale का केस क्या है, वहाँ पे एकदम फेमस केस है. हाँ, see what is the fact of this particular case, will look out. हाँ, the craftsman क्या हो गया देखो वहाँ पे, the crankshaft of the Peace flour mill had broken. एक पार्ट है मशीन का. हाँ, तो पी के फ्लोर मिल का एक पार्ट, नाम क्या देखो उस पार्ट का, क्रैंकशाफ्ट करके वो एक पार्ट है, वो क्या हो गया वहां पे, ब्रोक हो गया. हाँ, पी के फ्लोर मिल का, फ्लोर मिल समझता ना, आटे की मिल होती है. हाँ, तो उसके मशीन का एक पार्ट, इट्स कॉल्ड एज अ क्रैंकशाफ्ट, क्या हो चुका है, ब्रोकन हो चुका है. हाँ, उसने क्या किया देखो, he gives it to the deed of common carrier who promised to deliver it to the foundry in the 2 days where the new shaft was to be made. उसने क्या किया, उसने उसको बोल दिया क्या 2 दिन के अंदर अंदर मैं फाउंड्री को इसको दे दूंगा. हाँ, कि जहाँ पे नया शाफ्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा. अब ना शाफ्ट के बिना मशीन काम ही नहीं कर सकती ना, तो मिल क्या हो चुका है बोलो, बंद पड़ चुका है वहां पे. हाँ, द मिल स्टॉप्ड वर्किंग, delayed the delivery of the crankshaft, so the mill remained idle for another 5 days. 2 दिन में बोला था, बट उस गुड्स कैरियर वाले ने लेट कर दिया और मिल बंद पड़ी रही. कितने दिन के लिए मिल बंद पड़ी रही देखो, 5 दिन के लिए वो मिल बंद पड़ी रही. Now P received the repaired crankshaft 7 days later he would have otherwise received.
तो इन ऑल कितना लेट हो गया बोलो वहां पे, 7 दिन का लेट हो गया। हाँ, वो क्रैंकशाफ्ट उस तक पहुंचने के लिए। हाँ, कॉन्सिक्वेंटली पी sued द डी, पी ने उस कॉमन कैरियर को सूट फाइल कर दिया। हाँ, नॉट ओनली फॉर द डिले इन डिलीवरिंग द ब्रोकन पार्ट बट ऑल्सो टू द लॉस सफर्ड बाय द मिल फॉर नॉट हैविंग बीन वर्कड। हाँ, उसने दो चीजों के लिए, डिले के लिए भी सूट फाइल की, और जो 7 दिन उसकी मिल बंद पड़ी ना, उस 7 दिन के नुकसान के लिए भी उसने क्या किया, सूट फाइल वहां पे कर दिया। हाँ, द कोर्ट हेल्ड दैट हाँ P was entitled only to the ordinary damages. P किस चीज के लिए entitled था वहां पे, only ordinary damages, and D was not liable for the loss for profit, because the only information given by P to D was the article to be carried was a broken shaft of the mill, and it was not make known that the delay would cause the loss of profit. P ने D को ये बताया था क्या कि शाफ्ट पे मेरी मिल डिपेंड है, ये शाफ्ट जा रहा है तो मेरी मिल बंद पड़ जाएगी। हाँ, मेरी मिल 7 दिन बंद पड़ेगी तो मुझे इतना इतना नुकसान होगा, कुछ नहीं बताया ना, बस बोला कि ये मिल ये शाफ्ट यहाँ से यहाँ तक आपको पहुंचाना है। तो उसने जो स्पेशल डैमेज होगा वो स्पेशल डैमेज क्या नहीं किया था बोलो, इट वाज नॉट मेड नोन, उसको बताया हुआ नहीं था। हाँ, राइट। सो इसकी वजह से क्या हो गया बोलो, द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया यहाँ पे कि P was not entitled to recover that extra damage। हाँ, P बस क्या रिकवर कर सकता है वहां पे, जो डीले के लिए डैमेजेस होंगे उतने ही वो रिकवर कर सकता है। सो व्हाट इज द रूल यू गॉट हियर, स्पेशल डैमेजेस अगर आपको रिकवर करने हैं, हाँ, तो आपको सामने वाले पार्टी को मेक नोन पहले से कराना चाहिए कि अगर आपसे डीले होता है या ब्रीच होता है तो ये स्पेशल डैमेज यहाँ पे हमें होने वाला है। अगर आपने पहले से मेक नोन कराया तो यू कैन रिकवर दैट मनी, अदरवाइज यू कैन नॉट रिकवर दैट मनी। ठीक है। हाँ, एग्जांपल ले लो वहां पे, A agrees to sell B bags of rice for at ₹5,000 per bag. हाँ, delivery to be given after the 2 months. On the date of the delivery, the price of rice goes up to the 5,500 rupees per bag. हाँ, तो A refuses to deliver the bag, we can claim 500 rupees, क्योंकि ये बहुत कॉमन एग्जांपल है ना जो हमने भी लिया था। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन राइस का प्राइस क्या था बोलो, 5,000 रुपए पर बैग। जिस दिन उसने ब्रीच किया उस दिन कॉन्ट्रैक्ट का राइस रेट क्या था वहां पे, फिर वाज 5,500 ब्रीच रेट। तो सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5,000, ब्रीच प्राइस 5,500, इसका मतलब ऑर्डिनरी डैमेज कितना हो गया बोलो वहां पे, ऑर्डिनरी नेचुरल डायरेक्ट डैमेज होगा 500 रुपीज। सो यस, दिस कैन बी इजीली रिकवर्ड। हाँ, तो ऊपर का एग्जांपल जो है वो हार्डले वर्सेस बैंक का केस, वो किस चीज का एग्जांपल है बोलो, स्पेशल डैमेजेस का, और वो कब रिकवर कर सकते हो, ओनली अगर आपने उसको मेक नोन कराया है तो। और दूसरा जो एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल किसका है बोलो, नेचुरल डैमेजेस का है। हाँ, ऑर्डिनरी डैमेजेस का है, और ये डैमेजेस यस एज ऑफ राइट आप इसको क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। गॉट द पॉइंट। नंबर 2 देखो वहां पे, स्पेशल डैमेजेस इज द सेकंड पॉइंट वी आर गोइंग टू सी। हाँ, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट वी आर गोइंग टू सी देन में, स्पेशल डैमेजेस। अभी आपको ऑलरेडी समझ में आया ये कि क्या है स्पेशल डैमेजेस, सी बट स्टिल एक बार रीड आउट कर लेते हैं। When a party to a contract receives a notice of the special circumstances affecting the contract, he will not be liable for damages arising naturally and directly from the breach, but also for स्पेशल डैमेजेस। अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को आपने नोटिस दी है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की, हाँ, तो वो नेचुरल डैमेजेस के लिए तो लायबल होगा ही होगा। हाँ, बट ऑल्सो किसके लिए लायबल होगा बोलो, स्पेशल डैमेजेस के लिए लायबल होगा। हाँ, वो हार्डले वर्सेस बैक्सेंटले का केस है ना, वही रिपीट एग्जांपल फॉर्म में नीचे दिया है वापस। हाँ, बस थोड़ा सा अल्टर किया हुआ है। ए डिलीवर्ड अ मशीन टू द बी अ कॉमन कैरियर, ए ने मशीन किसको दिया, कॉमन कैरियर को, टू बी कन्वर्ट टू एज मिल विदाउट डिले। हाँ, ये also inform भी, बस उल्टा किया उसको, यहाँ पे बताया है उसने। हाँ, ये also inform भी that the mill was stopped for the want of machine। हाँ, मशीन नहीं है इसकी वजह से मिल बंद पड़ी है, बताया गया है इसमें। हाँ, बी अनरीजनेबली डिलेड द डिलीवरी, बी ने डिलीवरी क्या कर दी वहां पे, डिले कर दी। इन कॉन्सिक्वेंस इज प्रॉफिट हाँ विल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, in this case is entitled to receive from the B by way of a compensation the average amount of the profit, क्योंकि इसने बताया हुआ था ना पहले से कि मिल मेरी बंद पड़ी है, मेरा इतना इतना नुकसान हो रहा है, तो प्रॉफिट के अमाउंट भी रिकवर कर सकता है, which would have been made हाँ by running, जो उसको होता किस चीज के होता उसको, by running the mill during the period of the delay। हाँ, but he cannot recover the loss sustained due to the loss of the government contract। हाँ, बट वो बहुत ज्यादा हो गया ना कि अगर मिल चलती तो मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता,
मिलता ना, मिला हुआ नहीं है, हाँ, बट उसने बताया कि मेरी मिल बंद पड़ रही है, तो यस, उतने के लिए वो रिकवर कर सकता है, वो भी स्पेशल डैमेजेस है। ऑफ अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज एज कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट वाज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द वी। ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये नोटिस को लाया हुआ था क्या? नहीं, बस इतना बताया था कि मिल मेरी बंद पड़ी हुई है, हाँ, इस मशीन पे मेरी मिल डिपेंड है, तो क्या रिकवर कर सकता है? बोलो वो उतना, हाँ, मिल जो बंद पड़ी है, उसका जो प्रॉफिट लॉस हो गया है मिल बंद पड़ने की वजह से, हाँ, वो रिकवर कर सकता है, हाँ, बट वो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसको शायद मिलता, वो उसके नोटिस में लाया हुआ नहीं था सामने वाले पार्टी के। सो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो नुकसान हुआ वो नुकसान रिकवरेबल नहीं है, क्योंकि इट वाज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अ बी, उसको वो नोटिस में लाया गया हुआ नहीं था वहां पे। आया पॉइंट ध्यान में? सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने? स्पेशल डैमेजेस बहुत इजी है, हाँ, स्पेशल डैमेजेस कब रिकवरेबल हो? स्पेशल डैमेजेस आर रिकवरेबल, हाँ, if they are make known to the parties, if not make known to the parties, they are not recoverable, that's it. Ordinary damages, yes, they are recoverable as a right. Now the third concept we are going to see, this third concept is about vindictive or exemplary damages. क्या नाम है धन्य? Vindictive या exemplary damages is the third concept we are going to see. Now what is this exemplary or exemplary damages? इसको और एक नाम भी है, इसको और मेंशन करना चाहो तो मेंशन करके रखना. It's also called as a punitive damages, मतलब ना जो PUNI, हाँ, punitive damages, TARY. क्यों पता है इसको punitive damages बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ना पार्टी जो है उसको ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा डैमेजेस देने से मुझे पनिशमेंट होती तो अच्छा हो जाता, हाँ, मतलब ये डैमेजेस ना बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, तो पार्टी को ऐसे ऑलमोस्ट फील होता है कि इससे बेहतर मुझे पनिशमेंट हो जाती तो अच्छा होता, या फिर इतने डैमेजेस लगाए मतलब इट इज एज इक्वल टू पनिशमेंट, ऐसे फील होता है वहां पे। सो इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? विंडिक्टिव डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस या प्यूनिटरी डैमेजेस। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हाँ लगाए जाते हैं, सो उसको वो ऐसा नाम है कि विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ओके, ये विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस ओनली दो सर्कमस्टेंसेस में लॉ लगाता है, हाँ, vindictive damages are not applicable in all other cases, okay, except the two circumstances. And what are the two circumstances? Number one, for the breach of promise to marry, because it causes the injury to the feelings, number one कब मिलेगा बोलो? vindictive damages. Vindictive damages are avoidable in case of breach of promise to marry. breach of promise to marry अगर किया तो vindictive damages क्या हो जाएंगे वहां पे? अलाउड हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है ना, शादी प्रॉमिस करने के बाद वो तोड़ते हो तो फीलिंग्स हर्ट हो जाते हैं, तैयारी की होती है, हाँ, बहुत सारे इश्यूज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इस केस में विंडिक्टिव डैमेजेस आपको क्या होंगे? अलाउड होंगे अगर किसी ने क्या किया बोलो? ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस टू मैरी किया हुआ है वहां पे, हाँ। देन नंबर टू क्या एग्जांपल है देखो वहां पे? द wrongful dishonor of the check by the wrongful dishonor by the banker of his customer's check, because in this case the injury due to the wrongful dishonor to the drawer of the check is so heavy that it causes the loss of credit and reputation to him. हाँ, आपको ना बताते हुए यहाँ पे क्या दिया है पता है आपको? यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे दिया हुआ है. I'll just give an example. Suppose मेरे बैंक अकाउंट में सफिशिएंट पैसे हैं, हाँ, और मैंने आपको क्या किया पता है? मैंने आपको एक चेक दिया हुआ है, हाँ, और वो चेक आपने बैंक में भरा, हाँ, अब बैंक अकाउंट में सफिशिएंट पैसे होते हुए भी क्या हो गया पता है आपको? बैंक ने ना मेरा चेक डिसऑनर कर दिया। तो आप 100 जगह पे बताओगे ना, समझो मैं अगर एक वेल नोन बिजनेसमैन हूँ तो आप क्या करोगे बोलो? आप 100 जगह पे बताते घूमोगे, हाँ, क्या बताते घूमोगे आप 100 जगह पे कि अरे हाँ आपको पता है इस बिजनेसमैन ने मुझे चेक दिया था और उसका चेक बाउंस हो गया, तो उसकी रेपुटेशन कितनी खराब होगी ना। आपको पता है मार्केट में रेपुटेशन को बहुत वैल्यू होता है, और स्पेशली आपका चेक वेक अगर बाउंस होता है तो वो तो बहुत सीरियस चीज होती है वहां पे, हाँ। सो सेकंड सर्कमस्टेंसेस, हाँ, व्हेन आपको ये वाला पॉइंट दिखता है कि विंडिक्टिव डैमेजेस ग्रांट किए जाते हैं, वो सेकंड सर्कमस्टेंस क्या है बोलो? फॉर wrongful dishonor by the banker of his customer's check, हाँ, because in this case, हाँ, the injury due to the wrongful dishonor to the drawer of the check is so heavy that it causes the loss of the credit and the reputation to him. यहाँ पे क्या कॉज होगा बोलो? लॉस ऑफ रेपुटेशन कॉज होगा ना, सो इसकी वजह से वहां पे उसको डैमेजेस क्या हो जाएंगे? वो रिकवरेबल हो जाएंगे। कौन से वाले डैमेजेस रिकवरेबल हो जाएंगे बोलो? विंडिक्टिव डैमेजेस। हाँ, लेकिन ना
जो नॉन ट्रेडर्स होते हैं ना, मतलब जिनका इतना सच कोई ऐसा बिजनेस रेपुटेशन नाम की कंसेप्ट नहीं होते, उनको इतने ज्यादा डैमेजेस नहीं मिलते. ओके, सो बट अ नॉन ट्रेडर कैन नॉट गेट हेवी डैमेजेस इन द लाइक circumstances has suffered. तो जो जनरली बिजनेसमैन है, हाँ, उस बिजनेसमैन को क्या होगा बोलो, वहां पे विंडिक्टिव डैमेजेस मिल जाएंगे अगर उसके बैंक अकाउंट में, हाँ, पैसे होते हुए भी, हाँ, क्या किया वहां पे बैंकर ने, उसका चेक क्या कर दिया, बाउंस कर दिया, तो उसको विंडिक्टिव डैमेजेस वहां पे मिल जाएंगे. आए ध्यान में. हाँ, यहाँ पे ना अभी आपके मॉडल में नहीं दिया, बट ना एक्चुअली इसको एक ऐसा रूल भी जनरली आगे होता है, हाँ, कि जितनी चेक की अमाउंट कम है ना, हाँ, उतने डैमेजेस ज्यादा मिलते हैं. हाँ, और जितनी चेक की अमाउंट ज्यादा है उतने डैमेजेस की अमाउंट कम होती है. जस्ट आई विल गिव एन एग्जांपल. सपोज ना, हाँ, से फॉर एग्जांपल अभी ना मुकेश अंबानी ने मेरे शॉप से कुछ लिया हुआ है, और एक 1500 रुपीज का चेक दिया है मुझे. हाँ, और वो 1500 रुपीज का चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया. हाँ, और अपोजिट साइड ना मुकेश अंबानी ने अपने क्लाइंट से कुछ लिया था और उसको 10 लाख रुपए का चेक दिया था. हाँ, और वो 10 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गए. तो आप थोड़ा सा सोचो, हाँ, उसकी इज्जत किस चीज में ज्यादा कम होगी. 1500 रुपए का चेक बाउंस हो गया, ये ज्यादा बड़ी न्यूज होगी, या 5 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया, ये न्यूज ज्यादा बड़ी होगी. हाँ, तो देखो, 1500 रुपए का चेक बाउंस हो गया, ये न्यूज ज्यादा बड़ी होगी ना, क्योंकि मुकेश अंबानी जैसे इंसान का 1500 रुपए का चेक बाउंस हो गया. मेरे हिसाब से उसके हर बैंक अकाउंट में लाख रुपए के ऊपर तो पैसे कम से कम होने ही चाहिए. हाँ, चलो 5 लाख का चेक देते तो गलती से ऐसे बैंक का चेक दिया कि बाबा जिसमें पैसे नहीं थे, ऐसे लोग सोच सकते हैं. लेकिन मुकेश अंबानी का 1500 रुपए का चेक बाउंस हो गया, ये ना क्या हो सकता है पता है आपको, वहां पे पूरे दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है. हाँ, तो उसमें उनकी इज्जत ज्यादा कम हो जाएगी ना वहां पे. सो द पॉइंट हैज बीन दैट वो ऐसा बताते कि जितनी चेक की अमाउंट कम है ना, उतना आपको डैमेजेस की अमाउंट ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपकी इज्जत उतनी कम होती है ज्यादा. हाँ, और जितनी चेक की अमाउंट ज्यादा है उतने आपको डैमेजेस क्या हो जाएंगे वहां पे, कम मिल जाएंगे. हाँ, जस्ट नॉलेज के लिए आप लोगों को बताया. बट बाय द वे, विंडिक्टिव डैमेजेस मतलब विच आर अ वेरी हेवी अमाउंट ऑफ द डैमेजेस, हाँ, विच आर इन द फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट. And these vindictive damages are granted only in the two circumstances. Number one, promise to marry breach करने पे vindictive damages मिलते हैं. And number two, for the dishonor of a banker, of his customer's check, because in this case, the injury due to the wrongful dishonor to the drawer of the check is heavy as it causes loss of credit and reputation. उसकी credit and reputation पे impact होता है, तो इसकी वजह से ये damages उसको वहाँ पर मिल जाएंगे. Got the point? हाँ. Now next fourth type of damages क्या पता है आपको? हाँ, the fourth type of damages is the nominal damages. इसमें ना देखो क्या पता है, ये पॉइंट ही नहीं है कि मुझे नुकसान भरपाई चाहिए. हाँ, या ये पॉइंट भी नहीं है कि मुझे एक्चुअल में नुकसान हुआ भी नहीं है. बट ना सपोज आई हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कशिश, हाँ, एंड कशिश हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, आई जस्ट वांट टू प्रूव इन द कोर्ट कि कशिश ने मुझे प्रॉमिस किया था, हाँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे ब्रीच कर दिया. तो जस्ट मुझे नाम के लिए प्रूफ करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर चाहिए कि यस, कशिश वाज रॉन्ग एंड आई वाज राइट, कशिश हैज मेड द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, तो नाम के लिए जो डैमेजेस दिए जाते हैं ना, उसको बोला जाता है नॉमिनल डैमेजेस. फॉर द नेम सेक, जस्ट टू प्रूव दैट द प्लेंटिफ वाज राइट एंड डिफेंडेंट वाज रॉन्ग. हाँ, इस चीज के लिए जो डैमेजेस दिए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है बोलो, दे आर कंसिडर्ड एज अ, उसको कंसिडर किया जाता है वहां पे नॉमिनल डैमेजेस कंसिडर किया जाता है. हाँ, देखो, nominal damages are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of a contract. Just हमने प्रूव करना है कि यस, कशिश ने ब्रीच किया है. हाँ, बट मुझे ऐसे नुकसान कुछ नहीं हुआ है. ओके, बट he has not in fact suffered any real damage. कुछ भी रियल डैमेज मुझे हुआ ही नहीं है वहां पे. हाँ, इवन ना 1 रुपया 10 पैसे भी ये डैमेज की अमाउंट हो सकती है. हाँ, डैमेजेस की अमाउंट हो सकती है. यहाँ पे कितना अमाउंट मिल रहा है ये मैटर ही नहीं करता. यहाँ पर मैटर क्या करता है बोलो, who was right and who was wrong. हाँ, so it was awarded just to establish the right thing to the decree for the breach of contract. The amount may be a rupee or even a 10 paise. It doesn't matter how much amount has been given. It is important that the Kashish defendant has made a breach of a contract. Plaintiff was a right, हाँ, and therefore just to prove that the plaintiff has a right, the court passes the decree, मतलब judgment.
in favor of the court, in favor of the plaintiff, and that amount of damages may be a rupee or a 10 paise or a 15 paise etc. वहाँ पे amount हो सकती है. Nominal, namesake, for the namesake, the amount which is granted, the damages which are granted, they are considered as a nominal damages. Just to prove that the plaintiff was right and defendant was wrong, he has made a breach of a contract. Okay. Then next one देखो, damages for the deterioration caused by the delay is the next kind of a damages we are going to discuss. ये क्या माल मुझ तक पहुंचने में जो डिले हो गया ना, उस डिले के बीच में उस माल को जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए मैं जो डैमेजेस रिकवर कर सकते हो उसको बोला जाता है डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय द डिले. इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है. डिटोरिएशन का मीनिंग है यहाँ पे नॉट ओनली डिटोरिएशन इन द सेंस ऑफ जो माल को एक्चुअल नुकसान होगा, डिले की वजह से उस माल की जो कीमत कम हुई, डिले की वजह से उस माल का जो मार्केट वैल्यू कम हो गया, वो भी इवन डिटोरिएशन में कवर अप किया जाता है. याद है वो दिवाली वाला एग्जांपल, दिवाली के बाद में माल आया तो वो भी एक तरह का डिटोरिएशन ही है ना, क्योंकि दिवाली के पहले माल आता तो जो साड़ी 500 रुपए में बिकती, आज उसको 500 में दिवाली के बाद कोई नहीं लेगा, मुझे उसको 400 में बेचनी पड़ेगी. सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिटोरिएशन. सो डिटोरिएशन का दोनों मीनिंग लेना है. एक्चुअल डिटोरिएशन भी लेना है, मतलब जो सच में हुआ माल का नुकसान, और दूसरा मीनिंग इवन आप डिटोरिएशन का क्या लोगे वहां पे, डिटोरिएशन इन द सेंस ऑफ द डिटोरिएशन ड्यू टू द डिले, जो माल का वैल्यू वगैरह कम होता है वो भी इसमें क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा वहां पे. हाँ, लेट्स स्टार्ट. देखो एक्सप्लेनेशन लेते हैं. इन द केस ऑफ डिटोरिएशन कॉज्ड टू द गुड्स बाय द डिले, damages can be recovered from the carrier even without notice. उसने वो डिले किया, इसकी वजह से माल को जो डिटोरिएशन हो गया, आपको नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं आपको. बिना नोटिस भी आपको पैसे क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो. लेकिन वही आ गया है. देखो, the word deterioration not only implies the physical damage. Deterioration का meaning only physical damage नहीं है to the goods, but also loss of special opportunity for sale. अगर माल टाइम पे आता तो मैं दिवाली में वो माल बेच सकती थी. तो वो जो मेरा नुकसान हुआ ना, वो नुकसान में इसमें कवर अप हो जाता है. कौन से वर्ड के अंदर, डिटोरिएशन वर्ड के अंदर. ओके, सो नेचुरल damages which are direct damages you can recover, no problem. Number 2, special damages you can recover only if you make known to the other party. Number 3, that is what we have discussed, is that nominal damages can be recovered as of only to prove that a plaintiff was right and defendant was wrong. Then vindictive damages only promise to marry breach होता है, dishonor of check होता है तो. And even damages for the deterioration caused by the delay also you can recover in this particular case. Okay, now the next concept